So, a very warm welcome, everybody out there on Healthify Health Talk series. And today we have a new and prestigious members of Healthify community, and she's Dr. Shikha. And I would like to welcome Dr. Shikha on the Healthify Health Talk series as a panelist, as an eminent member. So, how are you, Dr. Shikha? Thank you very much. I'm very much happy to be here actually with you, ma'am. So much. Thank you so much. Yeah, yeah. So, please introduce yourself once to our Healthify family. Yes. So myself, Shikha Gupta. I am physiotherapist and nutritionist, and I have more than 14 years of experience in my field, and I've treated thousands of patients till now. So, like, happy to be here in Healthify community actually. Thank you so much. So, Dr. Shekhar, as we move further, today we have come up for the discussion on a talk on, about bone health and gut, right? Correct. So, before we proceed towards our main agenda of the day, I would Correct. like to know that what you have gained as a community member of Healthify in terms of knowledge, mindset, or business. Yeah, if you tell me, like, I'm feeling awesome to be a part of Healthify community actually, and words are less actually to define. But yes, when I joined this community, so it has also improved my knowledge. Definitely, knowledge part though they have improved only. Mental level also, like positivity, more of positivity, growth mindset. I gained only when I joined here actually. So as a like if anyone is wants to be a part of dietitian, nutritionist, or a like a wellness coach community, I would recommend them to be a part of Healthify Institute. Thank you so And much, moreover, Dr. now I'm Shekhar. attached here emotionally also a lot. Thank you so much, Dr. Shekhar. So Yes. let's start, and a very warm welcome again, once again to you and all our audience out there, those who are listening to us. So we'll start one by one, and later on at the end of the session, we'll be taking a short Q&A on the comments being received at the chat boxes and the comment sections. Okay. So Sure, let's sure. start, Dr. Shekhar. Yes. So I would like to know your expert knowledge that how actually what role do specific nutrients like calcium, vitamin D, and magnesium they Hmm. play in maintaining a healthy bones. Correct. So like if we talk about bones, we generally first think about calcium. So yes, definitely calcium is the main ingredient of our bone health. But apart from calcium, we need magnesium, we need phosphorus, we need zinc, and other minerals and vitamins also. So, Hmm. like we should have good nutrients in which there is good amount of calcium, phosphorus, and magnesium. Calcium role is basically to create the structure. And with the collagen, with the structure is built mainly because of the calcium. But magnesium plays a very vital role in absorption of the calcium, and it plays the role in maintaining the density, bone density actually. And then comes phosphorus. So phosphorus also plays a vital role in maintaining the structure of bones. Okay. And then vitamin D, that is also very important part. So if the absorption is not proper of calcium, though we are taking good nutrients, Hmm. so then also our bones will become weak. So vitamin D is also a very major nutrient which increases the absorption of calcium in the bones Okay. and also in our body actually. So, are there any kind of certain foods or dietary patterns that can promote your, better bone health in the people out there? Because these Yes, days we are listening like they are having knee sounds, clicking sounds, easily correct. fracture ho jata hai. Even in kids, Mhm. bones are not that much strong, जो पहले time पे होती थी. So, are there Correct. certain foods that can help to promote the better bone health? यस डेफिनेटली जो भी न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए फॉर बेटर बोन हेल्थ के लिए, तो जैसे कैल्शियम है तो फॉर कैल्शियम लाइक डेफिनेटली मिल्क डाइटरी सप्लीमेंट्स जो होते हैं, मिल्क सप्लीमेंट्स है, चाहे वो मिल्क है, योगर्ट है, कर्ड है या बटर मिल्क है, तो Hmm. उनका इंटेक प्रॉपर होना चाहिए. फिर वेगन डाइट में भी अगर हम बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कैल्शियम बहुत अच्छे से होता है, तो वो भी हमारी डाइट में होना चाहिए. Hmm. मटर में होता है, पीज में होता है, और ब्रोकली में होता है, और सीसीएम सीड्स मेन एक अच्छा वीगन सोर्स है मतलब इसका. तो कैल्शियम के लिए तो ये हो गया. विटामिन डी के लिए तो बेसिकली हमें सनलाइट अच्छी लेनी चाहिए, या फिर हमें सप्लीमेंट्स पे जाना पड़ता है बेसिकली उसके लिए. Okay. और विटामिन डी के अलावा फिर हमें नट सीड्स, ये सब भी अच्छे से लेने चाहिए डाइट में. नट सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
बिकॉज सेम टाइम हमारे लिए फाइबर लेना भी इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज दैट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स रिक्वायर्ड। ओके ओके। सो न्यूट्रिशन से जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हाउ एक्चुअली न्यूट्रिशन इम्पैक्ट योर बोन डेंसिटी, और स्पेशली डिफरेंट एज ग्रुप्स में? हाँ, डिफरेंट एज ग्रुप में बात करें तो न्यूट्रिशन तो डेफिनेटली मैटर करेगा, क्योंकि जो हम लेंगे अंदर वो अगर एसिमिलेट हो रहा है प्रॉपरली, मेटाबोलाइज हो रहा है प्रॉपरली, तभी वो बोन को करेक्ट न्यूट्रिशन दे पाएगा। तो वो एक पार्ट तो ये होगा कि हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना है। फिर अगर हम एज फैक्टर की बात करें, तो एज फैक्टर में बेसिकली जैसे हम बच्चों की बात करें तो दे आर मोर मोबाइल, दे आर मोर मोबाइल एक्चुअली। सो उनके अंदर क्या होता है ना, स्टिमुलेशन होता है ताकि बोन ग्रोथ, बोन डेंसिटी और इंक्रीज होती है। तो मेनली ये है कि उनको न्यूट्रिएंट्स आल्सो दे आर टेकिंग नाइसली, बिकॉज उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है, उनका जो एज है उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है, तो दे टेक फूड नाइसली एक्चुअली। तो ये बहुत अच्छा रहता है, वो खाना अच्छे से खाते हैं, दे आर फिजिकली मोर एक्टिव, माइंड से भी रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं। तो यंग एज में अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन भी प्रॉपर होता है, फिजिकल एक्टिविटी भी प्रॉपर होती है, जो कि स्टिमुलेट करती है बोन हेल्थ को। फिर हम थोड़ा आगे की एज की बात करें, जैसे हम एडल्ट्स की बात करें, जो कि हम 30s 40s की एज की बात करते हैं, या 20 से 40 एज ग्रुप की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन लेवल भी थोड़ा सा इग्नोरेंस हो जाता है, बिकॉज ऑफ द हमारी जॉब जॉब स्टार्ट हो जाती है या स्टडी स्टार्ट हो जाती है, और थोड़ा सा मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, हमारा खेलने कूदने में हमारा स्पोर्ट्स रिड्यूस हो जाता है, वी आर ओनली इनटू लाइक गोइंग एंड कमिंग फ्रॉम द प्लेस, या थोड़ा बहुत हम एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो बेसिकली फॉर हाफ एन आवर एंड सो होता है। बल्कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बोन हेल्थ अच्छी रहे, तो हमें दिन भर में भी हमें ओवरऑल एक्टिव रहना चाहिए फिजिकली, वी कैन टेक रेस्ट इन बिटवीन। और फिर हम अगर आगे नेक्स्ट एज जनरेशन की बात करें, अबव लाइक 50 60s या 70s की बात करें, तो उनमें हमारा मूवमेंट और रिड्यूस हो जाता है, और उस एज में जो मेन न्यूट्रिएंट का जो इनटेक का एक जनरल प्रॉब्लम आ जाता है कि उनके एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द एजिंग। वो जनरल है कि हम हमारी एजिंग के साथ में हमारा मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है, तो उस चक्कर में वो लोग अच्छी चीजें, प्रोटीन्स और कैल्शियम का इंटेक काफी कम कर देते हैं, बिकॉज उनको ब्लोटिंग और ये सब इश्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये खाना भारी है, ये लेने से हमें प्रॉब्लम होगी, बट उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि बोन बहुत वीक होने लग जाती है, फिर मोबिलिटी कम होती है, तो स्टिमुलेशन नहीं होता है बोन ग्रोथ होने का, बोन हेल्थ बेटर होने का, स्टिमुलेशन कम मिलता है, तो ओवरऑल वो एक साइकिल चलती रहती है। तो उसको अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो मेडिसिन, जो हम बात करें कि क्या दवा है एक अच्छी बोन हेल्थ के लिए, तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होने चाहिए, जो भी हमने भी बात करी थी उस बारे में, और मूवमेंट भी चाहिए, फिजिकली एक्टिव भी होना चाहिए, और माइंड से भी स्ट्रेस भी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये हमारी गट हेल्थ को भी फाइनली अफेक्ट करता है। दैट्स ग्रेट। तो जैसे कि बोन हेल्थ को लेके ना, देर आर इज देयर एनी काइंड ऑफ मिसकंसेप्शंस जैसे कॉमनली बहुत चलते हैं डाइट और बोन हेल्थ को, जो आपने फ्रीक्वेंटली कभी एनकाउंटर किए हो? यस यस, बहुत सारे पेशेंट्स के साथ होता है, जनरली हमारे पास हर एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं। तो अगर हम हमारे पास आ रहे हैं और हम बोलते हैं आपकी बोन हेल्थ नहीं, मैं कैल्शियम तो लेता हूँ, तो उनका, मैं कोई कोई हमारे पास ओल्ड एज वाले पेशेंट आते हैं, वो तो मैं तो साल भर से कैल्शियम की दवा ले रही हूँ, नहीं मेरी बोन्स तो ठीक होंगी। तो उन्हें फिर हमें समझाना पड़ता है कि सिर्फ कैल्शियम लेना ही जरूरी नहीं है, आप कैल्शियम ओवरडोज भी लेंगे तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है, कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। तो बोन की हेल्थ अगर आपको बेटर करनी है, तो न्यूट्रिएंट्स तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। तो ये एक मेजर मेन जो जनरली मिसकंसेप्शन होता है, फिर हम उन्हें समझाते हैं तो हाँ उनको समझ में आता है कि फिजिकल मूवमेंट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। और दूसरा ये है कि अगर मैं कभी उनसे सवाल पूछती हूँ कि आपका गट हेल्थ कैसा है या आपका डाइजेशन कैसा है, तो वो उससे रिलेट नहीं कर पाते कि व्हाई शी इज आस्किंग अबाउट दिस, वी हैव कम अप विद अ पेन प्रॉब्लम एंड ऑल। तो फिर उनको समझाना पड़ता है, अगर आपके एब्जॉर्प्शन ही अच्छा नहीं होगा, आप खाना अच्छे से खा रहे हो, एब्जॉर्प्शन ही अच्छा नहीं हो रहा है, कैल्शियम है चाहे और भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स का, तो वो आपकी बोन हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता ही है। ऑब्वियसली, यस यस। सो दीज डेज ना, जैसे कि हम लोग कितना कितना भी समझा लेते हैं कि कहीं ना लोग कहते हैं कि मैं तो लेता हूँ 1000 mg ले रहा हूँ, 500 mg ले रहा हूँ। सो प्रैक्टिकली क्या डाइटरी ट्रिप्स और मील प्लान्स हमें देने चाहिए या बताने चाहिए एक्चुअली ऐसी ऑडियंस के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो जिनसे उनकी बोन स्ट्रेंथ को और अच्छी से उनको स्ट्रेंथ मिल सके? हाँ, इसमें हम बेसिकली अगर मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट करें, तो मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि डिटॉक्स रेगुलरली चाहिए, बट यस वीकली वंस अगर लिया जाए तो भी बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज डेफिनेटली हम बॉडी में जाने क्या क्या किस किस तरीके के खाना डाल रहे हैं, और इवन हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारे कीटाणु आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी को रेगुलर वेज में क्लींजिंग की भी जरूरत होती है।
तो कुछ भी डिटॉक्स डाइट जो भी हमारी बॉडी को क्लींस कर रहा है, एनी काइंड ऑफ जूसेस, है ना, या चाहे वो इन्फ्यूज्ड वाटर होता है या फिर बॉइल्ड वाटर होता है ऑफ सम हर्ब्स एंड ऑल, वो सब रेगुलरली, या फ्रूट जूसेस होता है, वेजिटेबल जूसेस होता है, दैट इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल लाइक कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो पहले तो ऐसा कुछ होना चाहिए अपना मॉर्निंग रूटीन में, और नहीं तो एटलीस्ट वीकली ट्वाइस और वंस तो होना ही चाहिए। सेकेंडली, जो फ्रूट्स और इन सब का इंटेक हमें बढ़ा देना चाहिए, बिकॉज विटामिन सी, विटामिन डी, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही विटामिन इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर ऑफ थिंग्स, लाइक बिकॉज हमारी इम्यूनिटी, हमारा बहुत सारे होते हैं कि चैनल्स होते हैं, नर्व चैनल्स होते हैं, तो उसमें भी हमें हर तरह के विटामिन और मिनरल्स चाहिए रहते हैं। तो ओवरऑल लाइक फ्रूट्स आपको हर तरह के इंक्लूड करना चाहिए, नट्स और सीड्स इंक्लूड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल में। मैं सजेस्ट करूंगी कि जनरली कंसेप्ट होता है कि ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए बहुत, फिर लंच होना चाहिए और फिर डिनर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो मॉर्निंग में जो रूटीन है उसमें थोड़ा लाइट ही होना चाहिए ब्रेकफास्ट, बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। और शुरुआत जैसे जूसेस से हुआ है, तो फ्रूट या कोई स्मॉल, मतलब उससे हमें पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए इन ब्रेकफास्ट। फिर जो हमारा लंच टाइम होता है उसमें सैलड्स को इंक्लूड करना मस्ट है डेली डाइट में, है ना। तो वो सैलड्स पहले हमें लेना चाहिए, उसके हाफ एन आवर बाद में या उसके 15-20 मिनट्स बाद में हम प्रॉपर मील ले सकते हैं, जिसमें प्रोटीन होगा, कार्बोज होंगे और मीन्स वेजिटेबल्स होंगे हर तरीके के, तो इनको इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर मिड मील में जैसे टी, कॉफी, इनका इंटेक कोशिश जितना हो सके उतना कम करेंगे तो अच्छा रहेगा, और उसको हर्बल टी से रिप्लेस करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। और फिर डिनर थोड़ा सा लाइट ही होना चाहिए, That's great. एंड डेफिनेटली समवेयर बिफोर 7 और बिटवीन 7 to 8। That's great. So, बट आजकल काफी देखा जाता है कि कई लोग ना, जैसे कि डाइटरी में भी इवन दे गो टूवर्ड्स लाइक सो बहुत प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एंड नट्स खाने से डरते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा फैट चला जाएगा। तो उस पे क्या टेक है आपका? प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज हमारी बॉडी में वेयर एंड टेयर चलता रहता है और उसका रिपेयर भी लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, तो वी नीड प्रोटीन, बट देर इज ऑलवेज अ सर्टेन लिमिट, है ना। हमारे बॉडी वेट के हिसाब से ही हमको प्रोटीन का इंटेक लेना है, और नहीं तो फिर अगर अमीनो एसिड्स और ये सब ज्यादा हो जाएंगे तो यूरिक एसिड डिपोजिशन भी मेरे जॉइंट्स में बढ़ जाता है, जो भी एक मेन रीजन हो जाता है पेन प्रॉब्लम का। तो जो लोग काफी दूध लेते हैं, मॉर्निंग इवनिंग में ले लिया, मतलब और ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनको फिर गाउट या यूरिक एसिड का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, एंड देन जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो एक लिमिट में लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज की अति करना भी अच्छा नहीं होता है। And what about these nuts? People don't consider, लेके डर लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा फैट नहीं चला नहीं, जाएगा, नट्स नट्स एंड खाना बंद सीड्स, कर देते हैं। नहीं नहीं, नट्स एंड सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, और बाकी भी जो मिनरल्स होते हैं वो भी होते हैं उसमें, जो कि हमारी डे टू डे एक्टिविटी में, और वो इतने मींस दे फील सो लाइट बट सो फिलिंग आल्सो, मतलब खाते वक्त तो बहुत दे फील लाइट बट दे कीप अस फिल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो वो भी बहुत अच्छा सोर्स है फॉर वेजिटेरियन, स्पेशली नट्स एंड सीड्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फॉर वेजिटेरियंस, बिकॉज नॉनवेज के लिए और भी ऑप्शंस होते हैं नॉन वेजिटेरियंस के लिए, बट फॉर वेजिटेरियंस तो डेफिनेटली इट शुड बी अ पार्ट ऑफ डेली मील, दो इन लिमिट। इट उसकी भी लिमिट होती है, अगर अदरवाइज वो भी गर्मी करते हैं बॉडी में, तो उनकी भी एक सर्टेन स्मॉल अमाउंट में 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून लेने में इट विल लाइक गिव मिराकल्स एक्चुअली। दैट्स ग्रेट। सो अब जैसे कि बोन से रिलेटेड काफी लोगों को दिक्कतें भी बहुत होती हैं, किसी को गाउट का इशू है, किसी को नीज में पेन है, तो किस टाइप की एक्सरसाइजेस और या आप ये कह सकते हो फिजिकल एक्टिविटीज आप रिकमेंड करेंगे बोन एज एन फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो बोन हेल्थ के लिए? देखिए, बोन हेल्थ के लिए हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जनरली, उनको तो डेफिनेटली वो पेन लेकर आ रहे हैं, तो दे कैन नॉट डू वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस, है ना, ज्यादा वेट बेयरिंग और वो सब नहीं कर सकते, बट यस देयर आर ऑलवेज मिनिमल लाइक लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस दैट कैन इजिली डू इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ द रिकवरी। तो जो रिकवरी स्टेज है, जो कि हम 15 डेज से 20 डेज अराउंड माने, या मैक्सिमम इट गोज फॉर अ मंथ अराउंड, तब तक वो काफी बिल्डअप कर लेते हैं स्ट्रेंथ। उसमें लाइक स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग सब होती है, और लाइक प्राणायाम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। तो ये सब का मिक्स एंड मैच होता है, जो कि बहुत इजी, लाइक इट इज सम काइंड ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज, जो कि बेड रिडन पेशेंट्स भी करता है, बिकॉज हम आईसीयू केसेस भी देखते हैं, तो उसमें भी हम एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं, सम काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सम काइंड ऑफ एंकल मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, वेरी लाइट मूवमेंट्स। इट इज जस्ट लाइक मूविंग योर बॉडी। इफ यू आर मूविंग योर बॉडी, you are making your muscles active, you are making your bones active, that will help to deposit
गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन योर बोन्स। अगर हम ऐसे ही लेटे रहेंगे, लाइक मोर ऑफ लाइक इमोबिलिटी रहेगी, तो हमारी बोन्स में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। सो मेन है कि एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बीमार हैं तो यू कैन टेक रेस्ट ऑफ 1 or 2 days, पर 2 दिन से ज्यादा मैं इमोबाइल होना बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती किसी भी केसेस में। देयर आर मेनी स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइजेस, हैंड मूवमेंट्स, एंकल मूवमेंट, तो ओनली लाइक सिंपल रेंज मेंटेन करने के लिए जो एक्सरसाइज होती है विदाउट वेट बेयरिंग ऑल्सो, दोज कैन बी डन इजिली। दैट्स ग्रेट। तो जैसे कि अगर जैसे आप बता रहे हैं दैट वी नीड टू डू द एक्सरसाइजेज एंड वी नीड टू डू द फिजिकल एक्टिविटीज, तो रेगुलर करने से कैसे मतलब ओवरऑल बोल हेल्थ एक्टिव होगी? रेगुलर अगर हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो एक्चुअली हम अपने बॉडी में हर पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। कहीं पर भी ब्लड रश अच्छा रहेगा तो वहां पर हीलिंग अच्छी होगी, वहां पर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, क्योंकि ब्लड ही है जो सारे न्यूट्रिएंट्स फाइनली हमारी बॉडी में अलग अलग जगह सप्लाई कर रहा है। फिर हमारी बॉडी में अलग अलग जगह टॉक्सिन्स भी एक्यूमुलेट होते हैं, बिकॉज दिस इज अ लाइक गिव एंड टेक प्रोसेस। न्यूट्रिएंट्स आते हैं, गंदगी निकलती है उस एरिया से। तो जब ब्लड फ्लो अच्छा रहता है तो वहां पर वो सेम मतलब टॉक्सिन्स का निकलना भी बहुत इजीली हो जाता है, उसकी स्पीड अच्छी रहती है और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। तो ये ही फाइनली फिर हमारी बोन स्ट्रेंथ और इसको इम्प्रूव करके रखता है, दैट्स ग्रेट। मसल को स्ट्रांग बना के रखता है। तो जैसे कि आप अपने पेशेंट्स को डील करते हैं, काफी पेशेंट्स आते हैं, हम्म तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया या कोई और बोन हम्म रिलेटेड इश्यूज हो गए, जैसे कि हम्म गाउट हो गया, ऐसे पेशेंट्स में क्या कोई स्पेसिफिक ही एक्सरसाइजेस दी जाती हैं, या इनको जैसे अगर उनको प्रिवेंट करने में जो हेल्प करेंगे, अगर किसी को चांसेस लगते हैं कि डेवलप हो सकती है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो उसमें कोई ऐसी एक्सरसाइजेस हम्म। हैं जो वो लोग कर सकते हैं? यस यस, वो है कि वो कौन से जॉइंट की प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, बट बेसिकली आई जनरली गाइड देम ओवरऑल थोड़ा सा। जैसे इफ दे कम अप विद नी प्रॉब्लम तो डेफिनेटली नी की एक्सरसाइजेस तो मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ। एंकल मूवमेंट्स है, नी बेंडिंग है, लेग रेज है, तो बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस जो कि आप बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हो ये एक्सरसाइजेस। देन देर आर सिंपल एक्सरसाइज इन स्टैंडिंग ऑल्सो, लाइक हील रेस होता है, वॉकिंग लाइक विथ हील अप। अगर वो चीज डिफिकल्ट है, दे कैन होल्ड समथिंग, तो कुछ होल्ड करके some sort of exercises can be done, bending left right side front and back. So these are the initial stages of exercises. तो बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस भी हम उनको दे सकते हैं, जो कि लाइन डाउन में भी होता है, मैट एक्सरसाइजेस की फॉर्म में भी हो सकता है। और जरूरी भी नहीं है, बिकॉज इफ दे आर नॉट एबल टू लाई डाउन ऑन लाइक फ्लोर पे नहीं कर सकते हैं, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि फ्लोर पे ही करना है। आराम से बेड पे भी बहुत सारी लाइक देयर आर नंबर ऑफ 40 to 50 एक्सरसाइजेस आप आराम से बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं, That's जिसमें बैक की स्ट्रेंथनिंग भी कवर अप हो जाती है, नी की स्ट्रेंथनिंग कवर अप हो जाती है, हैंड्स की हो जाती है। good. ओवरऑल सारा मतलब हम जॉइंट्स को स्टार्टिंग स्टेज में कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, these days ना वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस आर आल्सो इन ट्रेंड, तो करेक्ट करेक्ट। उसको उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कैसे वो बोन स्ट्रेंथ में सपोर्ट करती है या मेंटेन करने में सपोर्ट करती वेट बेयरिंग एक्सरसाइज आपको ट्रेन कर रहा है प्रॉपरली आपके बॉडी वेट को, या हम जो दूसरे वेट्स ले रहे हैं डंबल्स और एल्स है? ऑल्सो, उससे वो स्टिमुलेशन दे रहा है कि आई नीड टू वर्क मोर ऑन द मसल्स एंड हम्म बोन्स ऑल्सो, है ना। सो जो रिक्वायरमेंट हम पुट ऑन करेंगे ज्यादा, तो उसी हम्म तरह हमारी जो बॉडी है इट विल एब्जॉर्ब मोर, है ना। हम्म मोर ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, मोर ऑफ अदर मिनरल्स एंड विटामिन्स बढ़ेगा। तो वो साइड बाय साइड जब मसल स्ट्रेंथन होगी तो बोन डेंसिटी को इम्पैक्ट करता है बेसिकली। जब हम ज्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं वेट बेयरिंग, तो हमारी बोन की डेंसिटी ज्यादा बेटर हो पाती है। अगर हम सिंपल एक्सरसाइजेस ही कर रहे हैं, जस्ट वॉकिंग रूटीन ही कर रहे हैं, तो वो बोन डेंसिटी वो फिर भी कंपैरेटिवली दैट इज देयर इज ऑलवेज सम लेवल्स, तो वो भी हमारी बोन डेंसिटी इंप्रूव कर रहे हैं, बट कम लेवल पे कर रहे हैं। और अगर हम वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसकी हम्म बोन डेंसिटी ज्यादा बेटर हो जाएगी, हम्म क्योंकि वो स्टिमुलेशन दे रहा है कि आई नीड मोर। दैट्स ग्रेट। सो तो क्या मतलब कौन से एज ग्रुप में, अगर हम ओल्ड एज की बात करें, या तो सर्टेनली वेट बियरिंग एक्सरसाइज कौन सी एज ग्रुप को करना अच्छा रहता है? वेट बेयरिंग एक्सरसाइज तो बेसिकली इफ यू गो देन 25 से लेकर 50, 55, 60 में वही लोग कर पाएंगे जो ऑलरेडी काफी टाइम से कर रहे हैं। ओके। सो जनरली देखा जाए तो जैसे कि हम लोग एक्सेसिव इनटेक्स लेते हैं, ठीक है, हम्म सर्टेन फूड आइटम्स का, जैसे कॉफी हो गई, ठीक है, टी हम्म हो गई, तो हम्म ये हमारी बोन हेल्थ को कैसे इम्पेक्ट करते हैं, उनकी डेफिशिएंसीज को कैसे क्रिएट करते हैं? डेफिनेटली ये जो कॉफी है, टी है, ये हमारी बॉडी को ज्यादा एसिडिक बना देता है, और जो बोन है उसमें से कैल्शियम को निकाल देता है।
तो बेसिकली ये एक्चुअली हमारी बोन्स को ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ मतलब ज्यादा पोरस बना देता है। बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है इन फूड को लेने से। तो अगर एक मॉडरेट अमाउंट में ले रहे हैं, डेली वंस ही ले रहे हैं या वीकली समटाइम्स ले रहे हैं, तो इसका कोई इतना असर नहीं होता है। बिकॉज साइड बाय साइड अब अगर अपने न्यूट्रिएंट्स, अपने एक्सरसाइज पैटर्न, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। बट डेली लाइक 3 to 4 times a day या 4-5 बार 6 बार ज्यादा बार लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी बोन्स को पोरस बनाता है ज्यादा और डेफिनेटली वीक करता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी देखा गया ना कि हम हेल्दी आइटम्स के तौर पे कुछ भी खा लेते हैं कि चलो ये तो हेल्दी तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं पता होता कि वो फूड एक्चुअली एसिडिक है, तो बॉडी में जाके वो एसिडिटी क्रिएट करेगा, वो बॉडी को एसिडिक मोड में लेके जाएगा। तो ये थोड़ा सा भी ना आप ये कह सकते हैं कि नॉलेज नहीं है। तो कोई ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें एक्चुअल में लेने चाहिए, मतलब या तो एक्चुअल में अवॉइड करने चाहिए जो बोन हेल्थ में जाए? एक्चुअली में अवॉइड करने चाहिए तो जैसे जो पैक्ड फूड आइटम्स जो जनरली मार्केट में आ रहे हैं इन द नेम ऑफ हेल्दी, तो उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर हमारी हमारी लाइफस्टाइल एक्चुअली बहुत फास्ट हो गई है तो एवरीवन नीड्स हेल्प एक्चुअली। तो उसमें भी अगर आप ये देखिए जिसमें प्रिजर्वेटिव मिनिमल है या नहीं है, ऐसे फूड आइटम्स लेंगे तो चलेगा। जैसे कि बहुत ज्यादा ये हम कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल्स, इनका मिलेट्स का आते हैं, तो उसमें भी अगर आप ये देखिए कि एक तो शुगर नहीं हो उसमें और दूसरी तरफ उनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं हो, देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट। बहुत तरीके के आटे आते हैं, ये हैं, उनमें भी आप ये देखिए कि जिसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है उनको ऑप्ट कीजिए, और जिसमें भी प्रिजर्वेटिव डाला है, अनहेल्दी फैट्स है, पाम ऑयल है, इनको अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिखा। सो जैसे कि आपने डाइटरी कंसिडरेशंस भी बताए और आपने बोन हेल्थ एक्सरसाइजेस भी बताई कौन सी रिकमेंडेड है, हमने मिसकंसेप्शंस पे भी बात करी। तो ये हम भी अपने कैफीन और इस पे भी बात करी, तो साथ ही साथ ना अल्कोहल का भी है, जैसे लोग अल्कोहल लेते हैं, तो वो कैसे अफेक्ट करता है, मतलब कैसे अल्कोहल और बोन हेल्थ को हम लोग रिलेट करेंगे? देखिए, अल्कोहल एक लिमिट में लेने से फिर भी इतना नुकसान नहीं होगा, बट मॉडरेट है तो इट इज फाइन। बट मॉडरेट मतलब ज्यादा ले रहे हैं लोग, लाइक इट इज एवरी डे पार्ट या एवरी वीक एंड द अमाउंट इज ऑल्सो टू मच, देन डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स लिवर एक्चुअली। तो अगर लिवर हमारा डैमेज हो जाएगा तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर देता है। तो मेनली यही है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उससे इम्पैक्ट हो रहा है, तो हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड अदर मिनरल्स एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से अल्कोहल लेना एक मॉडरेट अमाउंट में इज फाइन, बट ज्यादा लेने से ये मतलब इनडायरेक्टली इट इम्पैक्ट्स योर बोन हेल्थ ऑल्सो। ओके। सो बेसिकली अभी जैसे अल्कोहल का भी बताया आपने, स्मोकिंग भी कहीं ना कहीं सेम, हाँ, एक फैक्टर है बिकॉज जो ये अफेक्ट लंग की करता है। कैपेसिटी रिड्यूस कर देती है, ऑक्सीजन जो हमारा ब्लड फ्लो होता है ऑक्सीजन, तो जब हम स्मोकिंग करेंगे तो गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल नॉट रीच इन आवर ऑर्गन्स। हम्म तो फिर ये क्या करेगा कि वही हमारा जो सिस्टम है उसको बिल्कुल खराब करने की कोशिश करेगा। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगा हमारे सभी ऑर्गन्स या सेल्स में, तो हम्म उनमें डीजनरेशन जल्दी होगा रीजनरेशन के कंपैरेटिवली, जो कि हमें वियर एंड टेयर होता रहता है हमारे में एजिंग, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो फाइनली ये भी हमारी बोन्स को, हमारी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। that's it। तो जैसे कि अभी हमने एक्सरसाइज के बारे में भी बात किया था, मैं आपसे पूछना भूल गई, सॉरी टू से दैट, बट मुझे ये पूछना है कि आइडियल एज, जैसे आपने एज बताया, क्या है कोई आइडियल एज है जिसमें हम अपनी फोकस करना स्टार्ट कर दें अपनी बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में, और एक अवेयरनेस भी आए ऑडियंस में कि अगर उनके नियर वंस हैं तो किस एग्जैक्टली किस एज पे अगर वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं तो आगे जाके उनकी बोन्स को अच्छा काइंड ऑफ डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ मिलेगी? डेफिनेटली एक्सरसाइजेस फॉर ऑल एजेस एक्चुअली, तो है ना, बच्चों से ही हमें ये आदत डाल देनी चाहिए शुरुआत से ही कि आपको एक्सरसाइजेस एक पार्ट होना चाहिए लाइफ का। सो दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि जब उन दे विल सी द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु इज डूइंग मोर एक्सरसाइजेस, दे आर स्ट्रॉन्गर देन द वन हु इज नॉट डूइंग, तो उनको भी समझ में आएगी। बट हाँ ठीक है, एक वो एज ग्रुप बचपन से हम करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन जो आइडियल एज ऐसे कहें जिन्होंने मान लीजिए नहीं करा है काफी टाइम से, तो मैं सजेस्ट करूंगी 30 से तो स्टार्ट कर ही दें एज यू एंटर योर 30s, बिकॉज 30s के पहले पहले फिर भी बॉडी में हीलिंग पावर ज्यादा होती है। 30s लगते ही बॉडी में डीजनरेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, तो डीजनरेशन की स्पीड अप हो जाती है, और अगर हम ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो हमारी बोन्स और मसल्स को डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। तो 30s लगते ही, या एक्चुअली तो पहले से ही, बट हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए बोन स्ट्रेंथनिंग। सो ओके, दीज डेज ना जैसे किड्स में भी देखा गया है, 8 years ओल्ड, 10 years ओल्ड, 6 years ओल्ड, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस भी लोग कर रहे होते हैं, तो इट इज इट गुड?
वेट बेयरिंग एक्सरसाइज अगर खुद का बॉडी वेट लेके ही कर रहे हैं ना, देन इट इज फाइन. फॉर किड्स अप टिल एज ऑफ 15 और 17 एज, आई विल सजेस्ट देम टू डू ओनली अपना बॉडी वेट को यूज करके करें. और जैसे डंबल्स हैं या बारबल्स हैं और हैं, तो वो 18 प्लस वाले करेंगे तो ही ठीक रहेगा, बिकॉज वो बोन ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है. क्योंकि उनके कार्टिलेजेस अभी ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो कोई डैमेज नहीं होना चाहिए. तो खुद का बॉडी वेट लेके डेफिनेटली दे कैन डू लाइक योगा एंड अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस. बट 18 प्लस को ही वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस सजेस्ट करेंगे इफ दे आर गोइंग फॉर मोर वेट्स लाइक जिम एंड ऑल अदर वर्क्स. Okay, that's great. So, thank you so much, डॉक्टर शिखा. बट जैसे कि हम रेस्ट एंड रिकवरी पे बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि तो कितना ज्यादा मतलब व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेस्ट एंड रिकवरी इन मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स, Yes, yes, it's especially important. for those people those who are in sports activities. स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है तब भी रेस्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि रेस्ट वाले टाइम पे ही हमारी बॉडी रिपेयर भी कर रही होती है. अगर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो वियर एंड टियर बॉडी में, बोन्स में, मसल्स में होता रहता है. तो अगर हम चाहते हैं कि हम आगे तक अच्छे से खेल पाए या अच्छे से अपने फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर पाए, तो हमें मेनली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रेस्ट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. तो वही है कि अगर हम डेली बेसिस पे अगर किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो हमारी जो स्लीप होती है वो 8 आवर्स की कम से कम होनी ही चाहिए. दे शुड लाइक फाइंड आउट. और अगर इन बिटवीन भी उनका इट इज लाइक हैवी वर्कआउट, तो उसमें भी इनको बीच बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए, इधर फॉर 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, हाफ एन आवर. अगर वो ब्रेक ले सकते हैं फ्रॉम देयर फिजिकल वर्क, तो वो डेफिनेटली उनको लेना चाहिए बीच बीच में. नाइट स्लीप प्रॉपर करनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 घंटे 4 घंटे ही सो रहे हैं बिकॉज ऑफ द जो भी उनका रूटीन है उस वजह से. They have to take out time for sleep also properly. That's अच्छा, जनरली एक चीज जैसे कि कई लोग होते हैं कि पेन है लेकिन एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, जनरली के फिजियोथेरेपी नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब कोई ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पता होना चाहिए कि एट दिस पॉइंट वी एक्चुअली नीड फिजियोथेरेपी, हमें करवा लेनी चाहिए? वो कोई चीज ऐसी जो रिकवरी ना कर पा रही हो, जल्दी हील नहीं हो पा रही है, क्योंकि काफी लोगों को ये नॉलेज ही नहीं है कि हाँ, उनको लेनी correct. कब चाहिए. सी बहुत सारे घरेलू हम उपाय करते हैं जनरली लोग, है ना, घर पे अगर किसी को प्रॉब्लम है. जो मेरे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास में आफ्टर सर्टेन टाइम, तो जैसे वो ऑलरेडी गर्म पानी का सेक, ठंडा सेक कर चुके होते हैं. ठंडे सेक का नॉलेज कम है लोगों को, बट गर्म पानी का सेक कर चुके होते हैं, थोड़ा रेस्ट करके आ जाते हैं, एंड स्टिल पेन कंसिस्टेंटली हो रहा है, उनका डे टू डे एक्टिविटी हिंडर होने लग जा रही है. तो बेसिकली जब आपको लगे कि आप रिकवर ऑन योर ओन नहीं कर पा रहे हैं, और ये भी एक गलत चीज होती है कि वो पेन को बहुत लंबा ड्रैग करने के बाद आते हैं हमारे पास में, लाइक 6 मंथ्स, अ ईयर ऑल्सो. तो मेरा यही सजेशन है कि ओके, सी इट फॉर अ वीक और टू. अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली टेक द हेल्प ऑफ अ फिजियो, बिकॉज वो आपको सही से गाइड कर पाएंगे कि क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए. उस डेली रूटीन में आप कैसे एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करके आप ठीक हो सकते हैं. एंड इवन वी हैव सम मोडालिटीज ऑल्सो, वी यूज सम मोडालिटीज टू रिड्यूस द पेन ऑल्सो. तो राइट टाइम पे यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर हीलिंग वाला जो टाइम है वो बढ़ जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है हील होने में. तो मेनली 1 to 2 वीक्स आप देखिए अपना कोल्ड पैक, हॉट पैक घर पे करके, थोड़ा रेस्ट करके, थोड़ा लाइट एक्सरसाइजेस करके. तो अगर वो ठीक हो रहा है ऑन योर ओन, देन इट इज फाइन. फिर आप उसकी स्ट्रेंथनिंग पे अपने आप से भी ध्यान दीजिए. लेकिन अगर 2 वीक के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर हेल्प. थैंक यू सो मच. तो कैन यू रिकमेंड सर्टेन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी मोबिलिटी मतलब लिमिटेड मोबिलिटी के साथ हैं, तो उनकी बोन हेल्थ को भी सपोर्ट मिले? क्योंकि जैसे कि मैंने भी एक एग्जांपल देखा है, आई हैव समबडी टू नोन. हुआ क्या कि जैसे कि रिस्ट होती है, बिकॉज वी आर जनरली सम पीपल जो राइट हैंडेड, जनरली वो लेफ्ट को कम यूज करते हैं. कम यूज करते हैं. तो कम यूज होने की वजह से आप ये कह सकते हो कि दैट द जॉइंट बिकम स्टिफ्ड. तो उसमें धीरे धीरे उसकी जब यूज का उसका कम हो गया, बंद हो गया यूज उसका, तो उसमें पेन बनने लगा रिस्ट में, राइट? सो व्हेन इट वाज डायग्नोस्ड, तो उसमें था कि मोबिलिटी उसकी बहुत वो हो गई है, खत्म हो चुकी है एटलीस्ट, सो देन द थेरेपीज स्टार्टेड, और थेरेपीज भी 2-2 साल तक चली. और हाथ की एक्सरसाइजेस चली, शी हैज टू वियर द रिस्ट बैंड सपोर्ट के लिए, बिकॉज वो उससे कुछ कर, शी वाज नॉट एबल टू डू इट. तो जनरली जैसे बच्चे हैं, बिकॉज शी वाज एट अ वेरी यंगर एज, तो बच्चे हैं जैसे कि जनरली के राइट ही हैंड को यूज करे जा रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग देयर लेफ्ट हैंड्स. तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज डू यू सजेस्ट
कि although for if you are right handed or they are left handed, तो इक्वली हैंड्स को भी यूज कर पाए, तो ताकि उनकी मोबिलिटीज इंक्रीज हो। तो कुछ इस टाइप की एक्सरसाइजेस आप बता सकते हैं? बेसिकली जो अगर हम योगा में बात करते हैं तो हम जनरली वार्म अप एक्सरसाइज बोलते हैं या सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। तो वो सबको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो योगा क्लासेस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, चाहे वो जिम में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो जो एक सूक्ष्म व्यायाम वाला होता है वो जनरली आपके सारे जॉइंट्स को एक मिनिमल मूवमेंट दे देता है ना, लाइक स्मॉल रेंज ऑफ मोशन उसका कवर हो जाता है। तो हाथों का जैसे स्मॉल रेंज ऑफ मोशन है, रिस्ट का स्मॉल रेंज ऑफ मोशन है, ट्विस्टिंग ऑफ द हैंड, देन द शोल्डर, है ना। There are very mild, easy exercises that can be done on daily basis by any age group, whether the patient is bedridden or immobile or mobile, minimally mobile. वो सब ये जो बोलते हैं range of motion maintaining exercise, like we are just maintaining the range of motion. I'm not like putting pressure. I'm not using weights, but I'm maintaining the range of motion. I'm taking the range properly. I'm covering. Knee है तो knee को पूरा bend कर रहे हैं, straight कर रहे हैं, थोड़ा सा उठा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। So what we are taking care of each and every joint. We are taking care of the toes. We are taking care of the fingers. We are taking care of the shoulder, elbow, neck है, neck के छोटे छोटे movements होते हैं, stretching होती है। स्ट्रेचिंग बेसिकली हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है ना, उसकी लेंथ को मेंटेन करके रखता है। स्ट्रेंथनिंग बेसिकली हमारी बोन और मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करके रखता है। तो मेनली हमें सब तरह की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कवर करनी चाहिए हर जॉइंट की, और वो बहुत सिंपल होती है। जस्ट वी हैव टू मूव दैट जॉइंट। जैसे सबको पता है कि मेरा हाथ ऐसे मूव होता है, तो जस्ट डू इट। आप टाइम निकाल के आधा घंटा कम से कम दिन में बैठिए और सारी अपने जॉइंट्स को एक एक बार मूव करिए, तो एटलीस्ट यू विल नॉट फील वीक। एटलीस्ट आप वीक नहीं होंगे, आपकी मसल्स और बोन की हेल्थ डिप्लीट नहीं होगी। यू विल बी एबल टू मेंटेन इट वेरी वेल। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग में भी नहीं जा रहे हैं तो देन आल्सो लाइक। अच्छा, एक चीज और देखी गई है, जैसे सपोज जैसे जैसे विंटर्स आने लगते हैं ना, तो जॉइंट पेन ज्यादा बढ़ने लगता है। प्लस कोई अगर ऐसे कंधा रख के थोड़ी देर बैठ जाए तो उसके कंधे में दर्द बन जाएगा, हाथ यूं फोल्ड करके बैठ जाए तो दर्द बन जाएगा। यू नो दीज व्हाई इट हैपेंस? That comes the role there, that comes the roles of posture actually. तो posture तो डेफिनेटली एक है। ठंड है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है हमारा, हमारे मूवमेंट भी एक्चुअली इम्पैक्ट होते हैं। मेन रीजन होता है हमारा मूवमेंट। हम कम से कम मूव होना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम एक ही जगह बैठे बैठे अभी थोड़ा टाइम निकालें, क्योंकि जैसे ही मूव करेंगे थोड़ी ठंड लगेगी। तो ये रीजन की वजह से लोगों की मोबिलिटी एक्चुअली रिड्यूस हो जाती है, और फिर जल्दी पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिस वजह से जिसकी भी बॉडी में कोई भी एक पेन पॉइंट है, किसी को नेक में पेन होता है, किसी को बैक में पेन होता है, ऑलरेडी इम्पैक्टेड है उनका वो पॉइंट, तो उस पार्ट में जल्दी आपको ठंड आने पे पेन शुरू हो जाएगा। तो मेन जो है, अगर आप एक रेमेडी की तरफ जाना चाहते हैं कि मैं इसको ठीक कैसे करूं, तो मेन है मोबाइल रखिए उस जॉइंट को, है ना। और ये है कि कभी कभी गर्म सेक कर सकते हैं, बट गर्म सेक लगातार नहीं करना चाहिए कभी भी। लाइक 10 से 15 दिन हम लगातार कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। वीकली ट्वाइस तक करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा, बेनिफिट करेगा। और डेली करेंगे तो आपकी बॉडी में, बोन्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देगा वो। तो मोबाइल रखना है अपने हर जॉइंट को, उस जॉइंट को जैसे आप कह रहे हैं ऐसे बैठे हैं, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अ पोस्चर। तो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अपना बॉडी वेट, ताकि हमें एक ही पार्ट जैसे में पेन काफी डेवलप। लोग हैं पूरा पूरा दिन चेयर पे, जैसे अगर मैं अपनी बारे में बात करूँ तो आई हैव टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन टू द फॉर द सेशंस फॉर एवरीथिंग ऑन द चेयर इटसेल्फ। तो बॉडी पोस्चर बहुत होता है। कई बार होता है कि सेंटर ऑफ द बैक में भी पेन होने लगता है कई बार। पूरे दिन हम ऐसे नहीं बैठ पाते कमर सीधी करके। जैसे ही आप पोस्चर चेंज करोगे, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्टिफनेस एंड पेन इनटू योर बैक। उस टाइम पे क्या करें? उस टाइम पे तेरे मैनी एक्सरसाइज यू कैन डू ऑन द चेयर ओनली। हम चेयर पे ही, जो हमारे पास जो ऑफिस गोइंग पीपल आते हैं, जिनका लॉन्ग सिटिंग आवर्स है, आईटी पीपल हैं, तो उनके लिए तो बहुत सारी सेट ऑफ एक्सरसाइज है जो आप चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। जैसे कि टर्निंग एंड ट्विस्टिंग है, आप आराम से टर्निंग एंड ट्विस्टिंग कर सकते हैं। यू कैन स्ट्रेच योर बैक लाइक दिस, यू कैन गो फ्रंट डाउनवर्ड्स, यू कैन गो। तो आप क्या करें ना, अपनी स्पाइन को पूरी सी तरीके से स्ट्रेच कर रहे हैं, इन बिटवीन स्पाइन को कर रहे हैं, नेक को कर रहे हैं, बैठे बैठे। आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, बीच बीच में ब्रेक आता है, अगर कभी भी ब्रेक आता है तो आपको दो दो तीन तीन बार भी अगर आप उस जॉइंट को मूव कर लेंगे, कभी हाथ को मूव कर लिया, कभी शोल्डर को मूव कर लिया, कभी नेक को मूव कर लिया, कभी अपने पैरों को, हम बैठे हुए हैं अभी चेयर पे बट स्टिल वी कैन डू द एंकल मूवमेंट, वी कैन स्टिल मूव आवर लेग्स फ्रंट एंड बैक, दो वी आर सिटिंग ऑन द चेयर, वी कैन स्टिल टिल द आवर स्पाइन एक्चुअली। तो ये बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स है, पर इससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट आता है कि आपका बॉडी वेट जैसे स्पाइन की लोअर हिस्से में डेवलप होने लग जाता है, मतलब वहां पे हमारा बॉडी वेट गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, हम उसको मूव नहीं होने दे रहे, तो एक ही जगह की मसल्स और बोन्स इम्पैक्ट होने लग जाती है कि लाइक ओ द वेट इज कमिंग टू मच एक्चुअली। तो हमें क्या है ना, मूव करना है। जब मूव करेंगे तो दूसरी मसल्स भी उसका लोड ले लेती हैं और उस पार्ट को फ्री कर देती है थोड़े टाइम के लिए,
और जब भी जहाँ पे मूवमेंट होगा वहाँ ब्लड रश इंप्रूव होगा, तो वो आपकी बॉडी को हील रखेगा या हेल्दी रखेगा बेसिकली। That's तो great. देयर आर मेनी ergonomic एक्सरसाइजेस जो हम काम करते वक्त बैठे बैठे भी कर सकते हैं। So that's great, Dr. Shikha. Thank you so much for this valuable insights. And all those dietitians, especially those who are listening to us, make sure that if you have clients or patients, those who are into sedentary lifestyle or into IT industries, please make sure that you inculcate these movements that Dr. Shikha has informed into your client's schedule. If they're sitting, although in your 9 to 5 jobs and everything, all that. So thank you so much, Dr. Shikha. Now it's time to take the Q&A from the clients, and we have huge Q&As waiting in the chat box. Yeah. So we have Vandana Joshi. She's asking that, for good bone health, what all food should we include? As we have already informed during the session. Okay. Can only walking helps in maintaining good bone health? No, only walking is not the thing. Walking is the one main component, है ना, to improve your bone health. तो वॉकिंग तो होनी ही चाहिए somewhere around half an hour to 40 minutes. और if we talk about steps, तो 7,000 steps से लेकर 10,000 steps के बीच में हमारी वॉकिंग होनी चाहिए हमारी डेली रूटीन में. बट उसके अलावा भी हमें स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग और प्राणायाम इस पे फोकस करना चाहिए, है ना. तो सिर्फ एक अकेला वॉकिंग ही पूरा टेक केयर नहीं कर सकता है. इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट हमें स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग पे भी फोकस करना है. Okay. She's also asking that how much protein should be given in a day, dividing 3 meals for different age groups. So ये तो जैसे कि अभी बताया भी था आपने कि it will be as per the body weight only. बॉडी वेट के Yes, हिसाब से. and depending on the age for this, Bandana, you have to refer for the RDA because of which age category you are asking for. So you have to look for the RDA chart also. ठीक है. So we have okay. She's asking for old age people. ओल्ड एज पीपल के लिए भी उनके बॉडी वेट के हिसाब से ही होगा प्रोटीन इनटेक. और वही यू कैन नॉट टेक लाइक ऐसा नहीं कर सकते हम कि सिर्फ ब्रेकफास्ट में हमने पूरा प्रोटीन ले लिया तो हम, है ना, लंच में या डिनर में नहीं ले रहे हैं. हमको एक मिनिमल अमाउंट ब्रेकफास्ट में भी इंक्लूड करना है, और जैसे 1 बाउल कर्ड है, कुछ है, वो लंच में भी इंक्लूड करना है. और डिनर में भी कोशिश करनी है स्मॉल अमाउंट, बिकॉज थोड़ा हैवी होता है. तो इन द डिनर वी शुड टेक अ बिट ऑफ प्रोटीन, नॉट टू मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन. तो तीनों मील्स में से इक्वली डिवाइड कर देना है थोड़ा. That's great. That's great. So now I don't think so. There are a few more questions out in the chat box. Okay, Priya is asking that substitute of milk for lactose intolerant. Is there any kind of substitute for that apart from almond milk and coconut milk? Apart from, so you are asking calcium supplement ना, like calcium intake के लिए हम क्या लें अगर हम you are not able to take milk. हाँ, तो इसमें अगर हम वेगन पे जाएं पूरे, तो डेफिनेटली हम पीस, मटर खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का, जो किसी को पता नहीं होता है जनरली. बट अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अगर आप डेली डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपका कैल्शियम लेवल काफी अच्छा रहेगा. और उसके साथ साथ सीसेम सीड्स, तिल जिसे बोलते हैं, तो इसको भी अगर हम डेली डाइट में हम अपने यूज करें, अभी ठंड है तो हम गुड़ तिल यूज कर सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं तिल के. तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है. तो मटर, तिल और जो भी आप और नट सीड्स हैं, इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं. That's great. सर्वाइकल इश्यूज के लिए कोई टिप्स? सर्वाइकल इश्यूज के लिए बेसिकली रेगुलर एक्सरसाइजेस चलेंगी. और जैसे फ्रंट बैक होता है, मेंटेनिंग द रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेचिंग भी रहेगा, थोड़ा सा वो भी करना रहेगा. और ये ध्यान रखना है कि अगर आपका सिटिंग जॉब रहता है तो ऑन एंड ऑफ यू हैव टू टेक ब्रेक एंड देन यू हैव टू मूव योर नेक, बिकॉज पूरे टाइम नेक ऐसे नीचे की तरफ रहती है. तो यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर मूविंग योर नेक एवरी हाफ एन आवर और 1 आवर. थोड़ा सा मूवमेंट करना है नेक का, लाइट ही करना है बट करना है. और दिन में एक बार पर्टिकुलरली बैठ के प्रॉपरली नेक की एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है. Okay. So Dr. Nazish has one more query. Patients with history of rheumatoid arthritis having callus formation of bones. So उनको कैसे हैंडल करें डाइट के साथ? हाँ, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट है तो बेसिकली बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत होती है. तो जो इन्फ्लेमेटरी फूड्स है उनको थोड़ा अवॉइड करना है ना. और एक्सरसाइजेस हर एज ग्रुप, हर पेशेंट के लिए होती हैं. बस ये कि बहुत मिनिमल होती है उनके लिए, ताकि उनको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करे. एंड बेसिकली अगर उन्होंने जस्ट स्टार्ट ही किया एक्सरसाइज करना, तो उनके लिए माइल्ड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस होती है टू मेंटेन द रेंज ऑफ मोशन. तो इनिशियली 15 to 20 डेज फर्स्ट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस दी जाती हैं. फिर उसमें थोड़ा थोड़ा वेट इंट्रोड्यूस करके उनकी स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव करने के लिए और स्ट्रेचिंग करने के लिए और एक्सरसाइजेस को इम्प्रूव किया जाता है. तो मेनली उसमें क्या होता है ना, मॉडरेशन में करनी होती है एक्सरसाइजेस, बिकॉज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स अगर एक बार में ही ज्यादा एक्सरसाइजेस कर लेते तो हीट हो जाती है, एंड दैट ट्रिगर्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिकॉज इट इज एन इन्फ्लेमेटेड डिजीज.
तो हमें ये ध्यान रहता है कि हमें ध्यान रखना रहता है कि हम उसे दिन में 3 बार डिवाइड कर सकते हैं एक्सरसाइज को, एक बार में ज्यादा नहीं करना चाहिए, लाइक 10 to 15 minutes ऑफ एक्सरसाइज एट अ टाइम, ट्वाइस और थ्राइस अ डे दे कैन डू इजीली। दैट्स ग्रेट। और जैसे प्रिया ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा, आजकल कोलाजन मेडिसिन भी बहुत ट्रेंडिंग है। कोलाजन बिल्डिंग के लिए आप ले लो, सो डज दे रियली हेल्प इन कोलाजन बिल्डिंग? यस, आप लेंगे तो डेफिनेटली हेल्प करेगा, बट वही है कि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं सब में, तो कहीं ना कहीं वो एक तरफ से तो आपकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता हुआ दिखाई देगा, बट साइड बाय साइड कुछ और हार्मोनल इश्यूज और कुछ और होने लग जाएंगे। तो कोलेजन हमारी बॉडी खुद बनाती है, अगर हम प्रॉपर प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं रेगुलरली अपनी डाइट में, तो हमारी बॉडी खुद ही अच्छे से बनाती है। और एक और मेन फैक्टर होता है मोबाइल रहना, तो अगर आप न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहे हैं, अगर आप मोबाइल हैं एंड योर स्ट्रेस लेवल्स आर ऑल्सो मेंटेन वेल, मींस आप उसका बैलेंस रख रहे हैं प्रॉपरली, तो आपका बॉडी ही खुद ही अच्छे से विद द प्रोटीन्स कोलेजन बिल्ड करेगी। और अगर कोलेजन अच्छा होगा तो हमारी बोन हेल्थ डेफिनेटली अच्छी होगी, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है बोन्स का, वो कोलेजन से और कैल्शियम डिपोजिशन होने से बनता है, फ्रेमवर्क होता है कोलेजन का बेसिकली। तो दे आर इम्पोर्टेंट एक्चुअली, बट हम उसको काफी हद तक अपनी डाइट से ही कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रिया एक चीज और पूछ रही, पीज आर एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम बट कैन कॉज गैस इन सम पेशेंट्स, देन व्हाट टू डू? यहाँ पे कुछ आइडिया देना चाहेंगे आप, या मैं ले लूँ इस क्वेश्चन को? मेनली कच्चा खाने से थोड़ा गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, और इवन नाइट वैसे टाइम्स। भी कई बार देखा गया है कि कुक्ड में भी इशू आते हैं, तो एक्चुअल में ये प्रिया इसका राइट ये आंसर होगा कि आप पूरे दिन में सिर्फ पीस इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर आपका फूड कॉम्बिनेशन राइट है, ठीक है, तो इट विल बी गुड, वो आपको नुकसान नहीं देगा। और या फिर अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको गैस बना रहा है, तो आप प्लीज उसके लिवर पे काम कीजिए, बिकॉज इट्स क्लिक द कॉल ऑफ लिवर इफ इट्स कॉजिंग गैस। तो वहां पे अगर लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा होगा, तो आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, सिमुलेशन नहीं हो रहा है, then it is going to create the gas, otherwise it will not. Okay, so you need to check the food combination, because हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ भी मतलब सब्जी बोल देते हैं कि अच्छा ये खा लो, ये वाला फूड आइटम खा लो, बट एक्चुअली में किस फूड आइटम के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, दैट इज वो द बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। वही एक्चुअली जिसे कहते हैं ना, दैट इज एक्चुअली द गेम प्लान, जहाँ पे फूड कॉम्बिनेशन अगर राइट दे दिया, तो आपका जो भी रूट कॉज है उस पर आप बहुत इजीली काम कर पाओ। Okay, Priya, so you have to look after for the right food combination, and you need to understand how you can use different combination of food to give the best answer. Okay, thank you so much. So here we come to an end to the Q&A, and thank you so much for everybody for asking our queries and giving it like a very great session today. So thank you so much, Dr. Shikha. We are really blessed. You are the थैंक यू, part of Healthy थैंक Five यू वेरी community. मच। And थैंक यू। so we'll end the session today itself on the gut health and the bone health. And we'll be coming live on the next Friday on the next topic with the next expert on panel. So till then, stay connected, keep healthy yourself also. And if you are a dietitian and nutritionist or a doctor, make sure that you are making everybody else healthy as well. Thank you so much. Thank you very much to make me a part of this live session. Very Thank you nice. so much, Dr. Shikha. Thank you so much. And thank you for coming and taking out your time from your busy schedule. So let's end the session today, and we'll be coming back live again once. Thank you, Dr. Thank Shikha. you to all. Thank you so much. Bye bye.